Hi everyone, Namaste. Welcome back to Angrezi BT with me, Pallavi Jham. So today's first word is refrain. Okay, refrain is a verb. Refrained. Refrain का past tense is refrained. Okay, and refrainment is a noun. ठीक है. तो refrain का मतलब है किसी चीज को करने से खुद को रोकना. I refrained myself from speaking on the issue. उस विषय पे बोलने से मैंने खुद को रोका. I refrained myself. He refrained himself from participating in the meeting. उसने मीटिंग में शामिल होने से खुद को रोक लिया. अब वजह जो भी है, ठीक है. They refrained from attending the party. वो पार्टी में जाने से खुद को रोक लिए. That is refrain. Okay, so we'll see some examples. हाँ, उससे पहले रिफ्रेनमेंट मतलब रोकने की क्रिया या प्रक्रिया जिसमें किसी कार्य या व्यवहार से खुद को रोकना शामिल हो. रिफ्रेन, रिफ्रेन्ड, रिफ्रेनमेंट. राइट. He remained silent and refrained from fighting with his friends to avoid any argument. वह अपने दोस्तों से झगड़ा करने से बचने के लिए चुप रहा और खुद को रोक लिया. ठीक है. He remained silent. वो शांत रहा. Silent शांत. Remained शांत रहा, शांति बनाए रखा. He remained silent and refrained and खुद को रोका. From fighting लड़ने से खुद को रोका. With his friends अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों से लड़ने से खुद को रोका. To avoid ताकि वो avoid कर सके, बच सके. Avoid is वो चीज ना करना, उस चीज को करने से बचना is avoid. Any argument ताकि कोई झगड़ा वाद विवाद ना हो. Argument is वाद विवाद. Right? He remained silent and refrained from fighting with his friends to avoid any argument. The students were instructed to refrain from playing in order to maintain peace at school. विद्यालय में शांति बनाए रखने के लिए छात्रों को खेलने से परहेज करने का निर्देश दिया गया. The students विद्यार्थियों were instructed निर्देश were instructed निर्देशित किया गया. किसको? विद्यार्थियों को. To refrain from playing कि वो खेलने से खुद को रोकें. To refrain from playing कि वो ना खेलें. In order to is ताकि. Maintain peace शांति बने रहे. Maintain peace is शांति बने रहे. At school में. Alright? The students were instructed to refrain from playing in order to maintain peace at school. Okay, so he was advised to refrain from eating junk food in order to improve his health. You can add in order. In order मतलब ताकि. ठीक है. Okay. अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए उसे जंक फूड से परहेज करने की सलाह दी गई. जंक फूड जो हेल्थ के लिए हेल्दी नहीं है. ओके, दैट इज जंक फूड. ऐसा खाना जो हेल्थ के लिए हेल्दी नहीं है, दैट इज जंक फूड. ही वॉज एडवाइज्ड उसको सलाह दिया गया. एडवाइस इज सलाह. टू रिफ्रेन फ्रॉम कि वो रोके खुद को. किस चीज से? ईटिंग जंक फूड जंक खाना खाने से रोके वो खुद को. ठीक है. इन ऑर्डर ताकि. टू इम्प्रूव हिज हेल्थ ताकि उसका हेल्थ में इंप्रूवमेंट हो. हेल्थ इज स्वास्थ्य, इम्प्रूव इज बेहतर. ठीक है. हाँ. So, अपने हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए उसे जंक फूड से परहेज करने की सलाह दी गई. He was advised to refrain from eating junk food in order to improve his health. To eliminate hate towards someone, I refrain from harboring any hatred. किसी के प्रति नफरत को दूर करने के लिए मैंने खुद को नफरत करने से रोका. ठीक है. To eliminate, elimination is उस चीज को हटाना. ठीक है. Eliminate, हटा दो उस चीज को. ठीक है. तो to eliminate रोकना. Hate is नफरत. Towards someone किसी के प्रति. Towards someone किसी के प्रति. I refrained मैंने खुद को रोका. किस चीज से? Hatred is नफरत. Okay. Hatred is नफरत. Harboring is उस चीज को बढ़ावा देना. Okay. So to eliminate hate towards someone, I refrained from harboring any hatred. Okay. He refrained from giving his opinion to avoid conflict in the family. परिवार में कलह ना हो इसलिए उसने अपनी राय को रोक दिया. ठीक है. या अपनी राय नहीं दी. He refrained उसने खुद को रोक लिया. किस चीज से? Giving his opinion अपना राय देने से. Giving देना. His opinion अपनी राय. Okay. To avoid conflict. Conflict is
कलह, ओके, कॉन्फ्लिक्ट इज कलह। अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो फैमिली में, ताकि फैमिली में कलह ना हो। फैमिली इज परिवार, ठीक है। He refrained from giving his opinion to avoid conflict in the family. He had to refrain from certain habits to make changes in his life. उसे अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए कुछ आदतों से परहेज करना पड़ा, ठीक है। He had to refrain, उसे खुद को रोकना पड़ा, from किन चीजों से, certain habits, कुछ आदतें, ठीक है, to make changes, ताकि परिवर्तन कर सके in his life, अपनी जिंदगी में, ठीक है। He had to refrain himself from certain habits to make changes in his life. If we add himself here, तो उसका मतलब होगा उसको खुद को रोकना पड़ा कुछ आदतों से, ताकि वो लाइफ में कुछ चेंजेस कर सके, कुछ परिवर्तन कर सके, कुछ बदलाव ला सके, ठीक। A directive was given to refrain from speaking to each other. उन दोनों को एक दूसरे से बात करने से रोकने के लिए आदेश दिया गया था, ठीक है। A directive, directive is आदेश, was given, दिया गया, स्पीकिंग टू ईच अदर, एक दूसरे से बात करना, ओके, ईच अदर, एक दूसरे, स्पीकिंग, बात करना, टू रिफ्रेन फ्रॉम, उस चीज से रोका जाए, ठीक है। और डायरेक्टिव वाज गिवन टू रिफ्रेन फ्रॉम स्पीकिंग टू ईच अदर। ही वांटेड पीपल टू अंडरस्टैंड हिम बट ही रिफ्रेन्ड फ्रॉम शेयरिंग हिज थॉट्स एंड चोज टू रिमेन साइलेंट। वह चाहता था कि लोग उसे समझें, लेकिन अपने विचारों को रोककर चुप रहने का विकल्प उसने चुना, ठीक है। वांटेड, चाहना कि कोई चीज हो, is to want people, लोग, to understand him, कि उसे समझें, he wanted people to understand him, वह चाहता था कि लोग उसे समझें, but लेकिन he refrained from, उसने रोका, किसको, खुद ही को। sharing his thoughts is सोच, sharing is शेयर करना, साझा करना अपने थॉट्स को, and choose का past tense is chose, is चुनना, ओके। to remain silent, कि वो शांत ही रहे, remain is to maintain a state, silent, कि वो शांत ही रहे, ना अपने विचार शेयर करें, ठीक है। He wanted people to understand him, but he refrained from sharing his thoughts and chose to remain silent. Instead of comforting, he refrained from expressing his emotions and stayed silent. उसने दिलासा देने के बजाय अपनी भावनाओं को रोका और चुप रहा, ठीक है। दिलासा is actually to console, okay. Comforting is किसी को सुविधा में, to comfort someone is to किसी को सुविधा महसूस कराना, सहज महसूस कराना is to comfort, ठीक है। दिलासा देना is to console someone, ठीक है। So instead of बजाय comforting, किसी को सुविधा महसूस कराना, सहज महसूस कराना is comforting. He refrained, उसने रोका, किस चीज से, expressing his emotions, अपने भावनाओं को अभिव्यक्त करने से उसने खुद को रोका। Emotions is भावनाएं, expression अभिव्यक्ति, expressing अभिव्यक्त करना, to express अभिव्यक्त करना, ठीक है। And stayed silent, और शांत रहा। Stayed silent, stay is एक स्टेट बनाए रखना, तो वो साइलेंस बनाए रखा, वो शांति मतलब चुप रहा, ठीक है। So instead of comforting, he refrained from expressing his emotions and stayed silent. He refrained strictly from getting involved in any argument. उसने सख्ती से खुद को किसी भी वाद विवाद में शामिल होने से रोका। He refrained, उसने खुद को रोका, strictly, सख्ती से, किस चीज से, from getting involved in any argument. Argument is वाद विवाद, any argument किसी भी वाद विवाद। Getting involved, involvement is शामिल होना, getting involved is also शामिल होना, ठीक है। So I stopped myself from getting involved in any argument. मैंने खुद को किसी भी वाद विवाद में शामिल होने से रोका। I refrain myself, मैं उसमें नहीं पढ़ूंगी। That is to refrain oneself from getting involved. So he refrained strictly from getting involved in any arguments. He refrained from expressing his opinions to avoid offending others. So he refrained, उसने खुद को रोका, from expressing his opinions, अपने राय को अभिव्यक्त करने से उसने रोका खुद को, टू अवॉइड, ताकि उस चीज से बच सके, किस चीज से, ऑफेंडिंग अदर्स दूसरों को। ऑफेंडिंग मतलब ऑफेंसिव, ऑफेंसिव का मतलब होता है अपमानजनक या फिर आक्रामक, रूड,
मतलब ये जनरली एक्सेप्टेड नहीं है। आप किसी से किसी भी तरह से बात नहीं कर सकते, राइट? आपको एक बेसिक मैनर्स, डिसेंसी मेंटेन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द लॉ, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द लैंड। तो किसी से भी आप अप्रिय या अपमानजनक या आक्रामक या आक्रोश भरी बातें ऐसे ही नहीं कर सकते। दैट इज ऑफेंसिव। ऑफेंडिंग अदर्स, दूसरों से इस तरह से बात करना, अपमानजनक या रूड या आक्रामक, तो ही वांटेड टू अवॉइड डूइंग दैट एंड इसलिए उसने खुद को रोक लिया फ्रॉम एक्सप्रेसिंग हिज ओपिनियन। ठीक है, अपने विचार या अपने राय को अभिव्यक्त करने से उसने रोक लिया ताकि वो दूसरों को ऑफेंड ना करें। ऑफेंडर्स उसको बुरा ना लग जाए या भाषा गलत ना हो जाए, ऑफेंसिव ना हो जाए, अपमानजनक ना लगे, आक्रामक ना लगे। ठीक है, ही रिफ्रेन्ड फ्रॉम एक्सप्रेसिंग हिज ओपिनियंस टू अवॉइड ऑफेंडिंग अदर्स। आई हैड टू रिफ्रेन माई सेल्फ फ्रॉम गेटिंग एंग्री सो आई सेड नथिंग टू हिम। मुझे खुद को गुस्सा होने से रोकना था, इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं कहा। ठीक है, आई हैड टू रिफ्रेन माई सेल्फ, खुद को, फ्रॉम गेटिंग एंग्री, मुझे गुस्सा नहीं होना था इसलिए मैंने खुद को रोका। आई हैड टू रिफ्रेन माई सेल्फ फ्रॉम गेटिंग एंग्री, मुझे खुद को रोकना पड़ा गुस्सा होने से। सो आई सेड नथिंग टू, इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं कहा। ठीक है, हिम मींस उसको, आई सेड मैंने बोला, नथिंग कुछ भी नहीं। ठीक, आई हैड टू रिफ्रेन माई सेल्फ फ्रॉम गेटिंग एंग्री सो आई सेड नथिंग टू हिम। To maintain silence in class, the teacher asked the students to refrain from talking. कक्षा में शांति बनाए रखने के लिए शिक्षक ने छात्रों से बात करने से परहेज करने को कहा। ठीक है, To maintain silence in class, to maintain silence in class, कक्षा में शांति बनाए रखने के लिए the teacher, शिक्षक या अध्यापक, asked the students, students को बोला, विद्यार्थियों को बोला, टू रिफ्रेन, कि वो परहेज करें, कि वो रोकें, फ्रॉम टॉकिंग, बात करने से, वो खुद को बात करने से रोकें ताकि क्लास में शांति बने रहे। ठीक है, टू मेंटेन साइलेंस इन क्लास द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू रिफ्रेन फ्रॉम टॉकिंग। अगर यहाँ होता है फ्रॉम टॉकिंग टू ईच अदर, तो एक दूसरे से बात करने से रोको खुद को ताकि क्लास में शांति बना रहे। ठीक है, ओके, सो विल जस्ट सी फ्यू वर्ड्स फॉर रिफ्रेनमेंट एंड देन वाइंड अप। ओके, His refrainment from, refrainment मतलब रोकने की क्रिया या प्रक्रिया जिसमें किसी कार्य व्यवहार से खुद को रोकना शामिल हो। ठीक है, His refrainment from getting involved in conflicts improved his reputation. किसी भी विवाद में शामिल होने से बचाव ने, मतलब किसी भी विवाद में ना शामिल होना, इस प्रवृत्ति ने उनके छवि को बेहतर बना दिया या बेहतर बनाया। ठीक है, His refrainment, उनका रोकना खुद को, from getting involved in conflicts, वाद विवाद में शामिल होने से, वाद विवाद में इन्वॉल्व होने से खुद को बचाने की उनकी इस प्रवृत्ति ने इम्प्रूव्ड हिज रेपुटेशन, उनकी छवि को बेहतर बनाया। ठीक है, इम्प्रूव बेहतर बनाना, रेपुटेशन छवि। हिज रिफ्रेनमेंट फ्रॉम गेटिंग इन्वॉल्व इन कॉन्फ्लिक्ट्स इम्प्रूव्ड हिज रेपुटेशन। रिफ्रेनमेंट फ्रॉम एग्रेसिव रिएक्शंस इज एसेंशियल टू मेंटेन पीस इन सोसाइटी। समाज में शांति बनाए रखने के लिए उग्र प्रतिक्रिया से बचना चाहिए, बचना जरूरी है। रिफ्रेनमेंट, खुद को रोकना, फ्रॉम एग्रेसिव, उग्र, एग्रेसिव इज उग्र, रिएक्शंस इज प्रतिक्रिया, इज एसेंशियल जरूरी है। पीस इन सोसाइटी, समाज में शांति, मेंटेन बने रहे। ठीक है, रिएक्शंस इज प्रतिक्रिया, एग्रेसिव इज उग्र, तो समाज में शांति बनाए रखने के लिए उग्र प्रतिक्रिया देने से बचना जरूरी है। Refrainment from aggressive reactions is essential to maintain peace in society. Refrainment from harsh words often helps prevent conflicts. अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना अक्सर विवादों को रोकने में मदद करता है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट, विवाद, प्रिवेंट रोकता है, बचाता है, ऑफन अक्सर, हेल्प्स मदद, वर्ड्स शब्द, हार्श कड़क शब्द। ठीक है, रिफ्रेनमेंट रोकना। सो हार्श वर्ड्स को बोलने से रोकने से, कड़क शब्द बोलने से रोकने से अक्सर क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट से हम बच जाते हैं, वाद विवाद से बच जाते हैं। ठीक है, रिफ्रेनमेंट फ्रॉम हार्श वर्ड्स ऑफन हेल्प्स प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट्स। दे चोज रिफ्रेनमेंट फ्रॉम वायलेंस इवन व्हाइल फेसिंग इनजस्टिस। उन्होंने अन्याय का सामना करते हुए भी हिंसा से बचने का निर्णय लिया। दे चोज, उन्होंने चुना, चूज चुनना, पास्ट टेंस ऑफ चूज इज चोज। रिफ्रेनमेंट रोक, फ्रॉम वायलेंस हिंसा से, इवन वाइल फेसिंग सामना करना, इनजस्टिस इज अन्याय, इवन वाइल इनजस्टिस का सामना करते हुए भी, इवन वाइल फेसिंग इनजस्टिस। दे चोज टू रिफ्रेन देमसेल्व्स फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन वायलेंस। ठीक है, उन्होंने वायलेंट रिएक्शन देने से खुद को रोका। दे रिफ्रेन फ्रॉम रिएक्टिंग वायलेंटली इवन वाइल दे वर फेसिंग इनजस्टिस। दे चोज रिफ्रेनमेंट फ्रॉम वायलेंस इवन वाइल फेसिंग इनजस्टिस।
Refrainment means controlling or managing one's feelings despite challenging situations. Refrainment का मतलब चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद खुद के भावनाओं को कंट्रोल करना, नियंत्रण करना या संभालना खुद की भावना को. दैट इज रिफ्रेनमेंट. ओके. मीन्स मतलब मैनेजिंग, संभालना, कंट्रोलिंग, नियंत्रण करना वंस फीलिंग्स, खुद की भावना को. फीलिंग्स इज भावना. डिस्पाइट बावजूद. चैलेंजिंग सिचुएशंस चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां. ठीक है. सो रिफ्रेनमेंट मीन्स मैनेजिंग वंस फीलिंग्स डिस्पाइट चैलेंजिंग सिचुएशंस. ठीक है. सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन. मीट यू इन माय नेक्स्ट सेशन. टेक केयर.